हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 11 हिस्ट्री जो है ऑन एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट चैप्टर। यानी देखा जाए तो हम यहाँ कक्षा 11वीं का इतिहास करेंगे। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सिर्फ 12 क्वेश्चन होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपको समझाया जाएगा और ये एग्ज़ाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम हर एक बात पे, हर एक टॉपिक के महत्व के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर चीज़ का एनालाइज करेंगे। लेकिन आपको पता है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों RNC सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो NIOS बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे BA MA के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। According to the chapter on the empire across the 3 continents, you know that there's the most important chapter on the empire across the 3 continents. There is a most important chapter, and the next question is the most important arrive here. What was the policy of education in the Roman Empire? You know that the education system is the most important for any empire, because there is the most important for the literacy rate here. And what was the policy of education in the Roman Empire? That is important. Education in the Roman Empire contributed to be a social mobility that characterized the earlier period of the imperial history. And now as there are principate, you know that there is a principate here, and education was available only for those who could be paid for it. You know that that's important. Education was available only for those who could be paid for it, since there was not a state-supported system of school with the public funding. This is the most important policy for the education for the Roman Empire. And the rate of literacy is varied greatly between different parts of the empire. And literacy was spread among the army officer and state managers and soldiers. That's important. The casual literacy exists and it is varied for the place to place. This is an important point. Casual literacy exists and it is varied from place to place. And there was a ball in Pebbles, which is a carried advertisement, and graffitis, which is the indicate a high level of casual literacy here. This is important. And higher rate of literacy is indicate among the military personnel than to the among the general population. And education women were not usually, and there was expectations that is upper class girl, and would at least attend to primary school and probably in the same classes as a boys. Only as health is a few regardless of gender and want on to be receive secondary education only. Modest number of Slavs were educated and they play a key role in the promoting to education. And the culture of literacy is also here. Teachers, scribes and the secretaries were too likely to be a Slavs. The education of the Slavs was not to be encouraged, and Slav children of the mind attend classes with the children of their master. And bookstores were already well established in the Rome by the beginning of the imperial period. Another found also is the urban center of the provincings here. You know that is important. The education of Slavs is not to be discouraged, and Slav children meant to attend to class with the children of their masters.
and Bucharest were already well established in Roman by the beginning of the imperial period. It's important. And also there is a modern education as a play the key role in promoting education and the culture of literacy on this period time. And Tijan the scribes and the scarcities as they very likely to be a slave. Books were expensive, but by their later period, popular genres of the literatures indicated reading for the pleasure among the non-elites. And the parents sponsored libraries that were to some extent public, and the wealthy individual might donate a library for their community, accumulate an impressive private collection to which in a house a scholar mind to be attached. And literacy is a thought to be have declined in the late antiquate during the transitions away from to the classical institution and practice that supported it. This is important. यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 3 महाद्वीपों के फैला हुआ साम्राज्य चैप्टर के अंतर्गत कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर चैप्टर है। इसके अंतर्गत हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम व्यू से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं क्वेश्चनों को इस हद तक समझाने की कोशिश करता हूँ जो ज़रूरी है आपके लिए। कहते हैं मुझे पता है कि हमारे भारत देश में जो है कहीं भी देख लीजिए जो है बच्चों को क्वेश्चनों को हिंदी में बहुत आसानी से समझ में आता है, क्योंकि हम हिंदी देश के रहने वाले हैं, हम इंडियन हैं, तो जर्नल सी बात है। इसलिए जो है मैं सिर्फ इंग्लिशों को जो है रीड करता हूँ। हो सकती है इसमें कई मिस्टेक हो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं कह सकते, क्योंकि मैं कोई अंग्रेज़ नहीं हूँ, ठीक है। और मैं आपकी लैंग्वेज में इसको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। कहते वही बात समझिए जो समझ के लिए सही रहे। अगर यहाँ पर मिस्टेक भी कुछ होता है तो आप उसको सही कर सकते हो, क्योंकि आपके समक्ष जो है अक्षर भी यहाँ पर विजुअल होती है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, ठीक है, एक ज़रूरी भी है। यहाँ पर सिर्फ मेरा मकसद यही है कि आप क्वेश्चन की वास्तविकता से परिचित हो जाओ, क्योंकि क्वेश्चन को से परिचित होना, क्वेश्चन को समझना, यही त्रिपाण स्टडी सेंटर का मेन मकसद होता है। और जो मकसद में मैं हमेशा कामयाब भी होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो समझते भी हैं और इनके लिए ये बहुत आसान भी रहता है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आया रोमन साम्राज्य में शिक्षा की नीति, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि शिक्षा, हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का अर्थ होता है कि बच्चे जो है किसी शब्द को समझ सके, लिख सके, पढ़ सके। अब ज़रूरत नहीं है कि वो सभी लैंग्वेज में परफेक्ट हो, किसी एक भी लैंग्वेज में अगर आप परफेक्ट हो तो इसका मतलब आपको समझ है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है। और शिक्षा जो है किसी भी समय काल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शिक्षा जो है इंसानों को मार्गदर्शन दिलाती है, एक नए रास्ते पे जाने के लिए अग्रसर करती है, और कई रास्ते शिक्षा के अंतर्गत खुलती है। और कोई भी व्यक्ति आपको इसके अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत मूर्ख नहीं बना सकता, क्योंकि आपने सारी शिक्षाएं ग्रहण कर चुके होती हैं। तो शिक्षा जो होता है किसी भी समय काल के लिए महत्वपूर्ण है। और आज मॉडर्नाइज दुनिया में 21वीं शताब्दी में इसका तो और भी महत्व बढ़ गया है। लेकिन देखा जाए तो हम 21वीं शताब्दी में है, लेकिन फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम पिछड़ा हुआ है। कारण क्या है कि एजुकेशन जो है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है, और हम सारे व्यक्ति जो है आम गरीब बंदे हैं जो है सरकारी स्कूल पे ही आश्रित है। प्राइवेट स्कूल तो कहते हैं बहुत ही रेयर बच्चे जाते हैं गरीबों में से, ठीक है। और वो भी सरकार ने जो है अपने प्रपंड की जो है लाठी मार चुका है, ठीक है। अब जो है ऑनलाइन जो एक छोटे बच्चों का एडमिशन होने लगा है, और भी 1 किलोमीटर के दायरे में, तो सरकार की तरफ से जो है आम गरीबों को सबसे बड़ा लाठी पड़ी है। और इनका सबसे बड़ा मकसद पूरा हुआ है कि आम गरीब बच्चों को जो है शिक्षा नहीं मिलना चाहिए। और जैसे रोमन साम्राज्य में भी था कि जो गरीब थे, आम थे, उनको पढ़ने का शिक्षा नहीं देते थे, बेशकली उनका इस्तेमाल भरपूर होता था। और वही आज की दुनिया में भी है। आज 21वीं शताब्दी में भी सरकार का यही नीति है। अब देखिए समझदारी की तो बात ये आती है, अगर प्रशासन समझदार होता, समझता, तो सब प्रशासन को एक बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी बड़ा प्राइवेट स्कूल होता है तो कोई भी प्राइवेट स्कूल खोलता है
तो वो शहरों में खोलता है, वहाँ खोलता है जहाँ पर जो है अमीर लोग रहते हैं। लेकिन अगर आप आरटीई के रिगार्डिंग अगर उस जगह स्कूल खोलते हो जहाँ पर अमीर लोग रहते हैं, अगर वहाँ पर आपने एक प्रावधान बना दिया कि 1 किलोमीटर के दायरे हमने बच्चों को सिलेक्शन करना है, तो जर्नल सी बात बताइए कि 1 किलोमीटर दायरा तो गरीबों को दूर दूर तक नज़र नहीं आएगा, फिर किनका होगा एडमिशन? मिडिल क्लास के बच्चों को, जो थोड़ा हाई फाई होंगे, उनको गरीब मान लोगे आप सोचते होगे कि हम यहाँ इंक्वायरी करते हैं, हम तो भाई जांच परख करके हम जो है इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं। अरे भाई, सब जगह जाकर देख लीजिए, घोड़ा का धंधा ही हो रहा है। आप घर में बैठ जाते हो, आराम से हुक्म दे देते हो, इसका मतलब सब कुछ क्या सही है? आप गलत फहमी की दुनिया जी रहे हो। तो यहाँ पर रोमन साम्राज्य में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला कि यहाँ पर भी सरकार की 2 नीति थी, जिसके कारण स्लैब जो थे, जो दास थे, उनकी बहुत ही दुर्दशा बेकार थी। लेकिन देखा जाए तो दासों का ही महत्वपूर्ण स्थान था। तो यही यहाँ पर क्वेश्चन आया कि रोमन साम्राज्य में शिक्षा की नीति क्या थी। कहते हैं रोमन साम्राज्य में शिक्षा में सामाजिक गतिशीलता में योगदान दिया, जो कि शाही इतिहास के आरंभिक काल के विशेषता भी जो है, जिसे हम प्रिंसिपेंट के नाम से जाना जाता है, काफ़ी महत्वपूर्ण था। यानी शिक्षा ने इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखा। शिक्षा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो इसके लिए भुगतान कर सकते थे। जर्नल सी बात है, आज भी वही सिस्टम है। आज शिक्षा उनके लिए है जिनके पास जो है पैसे हैं, शिक्षा उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि सार्वजनिक वित्त पोषण वाले स्कूलों की कोई राज्य समर्थन प्रणाली नहीं थी। लेकिन आज उल्टा है, आज भारत सरकार के शिक्षा के ऊपर दबदबा है और समर्थन भी प्राप्त है। लेकिन सरकार इन बात को कभी भी एनालाइज नहीं करती है कि उसके स्कूल में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि कोई भी मंत्री जो होता है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में नहीं दाखिल कराती हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि सरकारी का मतलब होता है अनपढ़ता। बच्चे सिर्फ जाते हैं और बैठ के आते हैं और कुछ भी नहीं होता। अगर ऐसा नहीं होता तो बड़े लोग जो हैं प्राइवेट स्कूलों में बच्चों की एडमिशन क्यों करवाते हैं, ऑक्सफोर्ड क्यों भेजते हैं, रोमन जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड क्यों भेजते हैं बच्चों को? क्या भारत से अच्छा उत्तम शिक्षा वहाँ पर है? संभवतः ही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा भारत में है, लेकिन भारत की शिक्षा को जो है बड़े बड़े लोग बिगाड़ रहे हैं अपने मकसद में, अपने जो है खिचड़ी पकाने के चक्कर में। शिक्षा केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध थी जो उनके लिए भुगतान कर सकते थे और जिनको सार्वजनिक वित्तीय पोषण वाले चीज़ें थी। जर्नल सी बात है, अमीर लोग ही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच साक्षरता की दर बहुत भिन्न थी। जर्नल सी बात है, आज भी देखिए हर क्षेत्र में साक्षरता दर जो है बहुत ही भिन्न नजर आती है। सैन्य अधिकारी, संपत्ति प्रबंधक और सैनिकों के बीच साक्षरता व्यापक थी। यानी सैन्य अधिकारी के समक्ष, संपत्ति वाले प्रबंधकों के समक्ष और सैनिक के बीच साक्षरता जो थी काफ़ी फैली हुई थी। आकस्मिक साक्षरता विद्यमान थी और यह स्थान पर भिन्न भिन्न थी। जैसे आज भी आधुनिक युग में भी आपको शिक्षा विभिन्न स्थानों पर विभिन्न तरीक़ों से देखने को मिल जाता है। पोपाई में एक दीवार थी जिस पर विज्ञापन और भित्ति चित्र भी थे, जो उच्च स्तर की अनौपचारिक साक्षरता का इंगित करता है। यानी पोपाई एक जगह था जहाँ पर दीवार पर जो है विज्ञापन थी और भित्ति चित्र भी था, और ये अनौपचारिक साक्षरता की जो है बातों को यहाँ पर बता रहा था। सामान्य आबादी तुलना में सैन्य कर्मियों में साक्षरता की दर जो है संकेत मिलती है। यानी देखा जाए तो सामान्य आबादी के तुलना में सैन्य कर्मियों में साक्षरता की उच्च दर प्राप्त हमें हुई है, और शिक्षित महिलाएं असामान्य नहीं थी। शिक्षित महिलाओं की संख्या बहुत ही कम था, और जनरल सी बात है अमीरों में शिक्षा देने की प्रावधान थी, बाकी जो है स्लैब या गरीबों में देने की कोई प्रावधान नहीं थी। और ऐसी अपेक्षा थी कि उच्च वर्ग की लड़कियां कम से कम प्राथमिक विद्यालय में जाएगी। संभवतः लड़कों को सामान्य कक्षाओं में और लिंग की परवाह किए बिना केवल कुछ विशेष वर्ग के लोगों ने ही माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। तो जर्नल सी बात है, जो उस समय धार्मिक अंतर्गत होता था आज के समय पैसे के अंतर्गत होती है। आप सोचते होंगे कि सरकार ने तो बहुत चीज़ फ्री किया हुआ है भाई, बच्चों को प्रमोट करने के लिए जो है इन्होंने स्कॉलरशिप की प्रावधान किया है, इन्होंने लैपटॉप सरकार दे रही है। मैं तो कहता हूं कि संसाधनों की इतनी भरपाई क्यों सरकार कर रही है? क्या सरकार के इसमें कोई और मकसद है? अगर मान लीजिए सरकार किसी बच्चे को मोबाइल देता है, किसी को लैपटॉप देता है और उसमें बच्चे नेट लगाते हैं, तो आपको क्या विचारधारा लगता है कि वो पढ़ाई का सही इस्तेमाल कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो कहीं भी नहीं कर सकते।
मोबाइल हो और लैपटॉप हो तो कहते हैं सरकार जो है बच्चों को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। बिना लैपटॉप और मोबाइल के भी हमारे देश में बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, लेकिन अब देखिए कुछ सालों में ना तो साइंटिस्ट कोई बन रहा है ना कुछ बन रहा है। क्यों? क्योंकि आजकल बहुत पूरी आधुनिकता है, क्या है फिर भी कुछ भी नहीं है। हमारी क्या भारत में खोज है, क्या हमने खोजा है? अभी के समय तो मुझे लगता है कि कुछ भी खोज नहीं हुई है। जो भी हुआ था पुराने समय में हुआ था, जो बड़े बड़े लोग बिना कंप्यूटर और लैपटॉप के जो है अपनी दिमागों की बुद्धि कसौटी पे जो है बहुत बहुत खोज किए। आप तो लगता है कि कुछ भी नहीं है, हम तो दूसरे देशों के सिर्फ नकल कर रहे हैं। अब देखिए भारत में जितनी कंपनियां हैं, जितने आप जो है दिन प्रतिदिन सामान यूज़ कर रहे हो, कोई भी भारतीय नहीं है। सिर्फ उसमें लिखा होता है मेड इन इंडिया, लेकिन कोई भी जो है भारतीय कंपनी नहीं है। ये बहुत अफसोस की बात है। सिर्फ मेड इन इंडिया लिख देने से कहते हैं भारत में जो है हर चीज़ विकसित नहीं हो सकता है। और ये सब क्यों होता है? शिक्षा की जो है गिरी हुई परसेंटेज के कारण। कहते हैं मामूली संख्या में दासों की शिक्षा किया जा रहा है। दासों को तो कहते हैं शिक्षा देने का प्रावधान नहीं था, एकदम मामूली थी। जैसे भारत में भी है, देखिए अभी हम 21वीं शताब्दी में आ गए हैं और यहाँ पर शिक्षा का स्तर बहुत ही कमज़ोर है। कोई कोई बच्चे तो इतने इंटेलिजेंट दिखाते हैं टीवी पे, और कभी कभी तो ऐसे बच्चे भी दिखाते हैं जो कहते हैं उनको आता ही नहीं, लेकिन ऐसा कभी देखने को मिला नहीं मुझे। टीवियों में तो हमेशा इंटेलिजेंट बच्चे ही आते हैं, जो मूर्ख बच्चे आते हैं उनको कौन दिखाता है। और मंत्री जी जब किसी स्कूल में दर्शन करने बच्चों को जाते हैं तो वहाँ पर तो इंटेलिजेंट बच्चों को ही आगे किया जाता है कि भाई मंत्री जी आए हैं, उनके सामने अच्छा खासा कपड़ा पहने हुए बच्चों को ही भेजा जाए। लेकिन बाहर जो खड़े बच्चे हैं उनको कोई देखने भी नहीं जाता। ऐसी प्रावधान आपको अक्सर देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि उस समय भी यही होता था कि मामूली संख्या में दासों को शिक्षित किया जाता था और उन्हें शिक्षा और साक्षरता की संस्कृतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शिक्षकों और जो है शास्त्रियों और सचिवों में गुलाम होने की संभावना थी, इसलिए उनको शिक्षा देने की प्रावधान उतना अधिक नहीं था। यानी दासों में शिक्षा जो थी नाम मात्र की थी और सिर्फ वो अपने कार्य के लिए ऐसा करते थे। दासों की शिक्षा को जो है हतोत्साहित नहीं किया जाता था, हमेशा उनको कमज़ोर करने की कोशिश की जाती थी। और दास बच्चे अपने स्वामी के बच्चे के साथ कक्षाओं में भाग ले सकते थे और शाही काल के शुरुआत तक रोम में पुस्तक भंडार पहले से ही अच्छी तरह से स्थापित थे और प्रांतों के शहरी केंद्र भी पाए जाते। देखिए कहते हैं रोम में भी कई जगहों पर देखने को मिला कि स्वामी के बच्चों के साथ कक्षा में भाग ले सकते थे, यानी दास बच्चे अपने स्वामी के बच्चों के साथ भाग ले सकते थे, पढ़ सकते थे। ये प्रावधान बनाई गई कई क्षेत्रों में। किताबें महंगी बेशक ली थी उस समय काफ़ी, जैसे आज के समय में है, लेकिन बाद के समय में साहित्य के लोकप्रिय विधाओं ने जो है गैर कुलीनों के बीच आनंद के लिए पढ़ने का संकेत दिया। सम्राट ने पुस्तकालयों को जो है प्रयोजित किया, जो कि कुछ हद तक सार्वजनिक भी थे और हर धनी व्यक्ति किसी समुदाय के लिए पुस्तक दान कर सकता था। यह प्रभावशाली निजी जो है संग्रह जमा कर सकता था, जिसे घर के विद्वान जुड़े हो सकते थे। यानी इस तरह के प्रावधान रोमन साम्राज्य में था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इसका समर्थन करने वाले शास्त्रीय संस्थाओं और प्रथाओं से दूर जाने के दौरान जो है साक्षरता में गिरावट काफ़ी हद तक देखने को मिला। यानी देखा जाए तो रोमन साम्राज्य में शिक्षा का स्तर बढ़ा, लेकिन कुछ हद तक गिरा भी नजर आया। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं एक ही बात कहता हूँ, जब तक शिक्षा का स्तर ऊंचा नहीं होगा तब तक जो है हमारे देश में प्रगति नहीं होगी और हम लोगों के बहकावों में आ जाएंगे, लोगों के जो है बातों में आ जाएंगे और लालचों में हमेशा डूबते रहेंगे। और यही जो है हमारा नस जो है मंत्री लोग सब पकड़ रखे हैं कि लालच दो और सीट को जीत लो। लेकिन दोस्तों कहते हैं कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसका मतलब उसको समझदार होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए और जनता के लिए होना चाहिए, तभी जो है उस क्षेत्र का विकास हो सकता है। लेकिन हम ये सब बातें नहीं देखते हैं, नहीं सोचते हैं, सिर्फ हम ये देखते हैं कौन कितना का लालच दे रहा है, किसके लालच में कितना दम है। आज हर क्षेत्र में यही हुआ है। कहते हैं बहुत से छोटे मोटे इलेक्शन भी हुए हैं जो कॉलेज लेवल पे भी हुए हैं, वहाँ पर भी ऐसे ही देखने को मिला है कि जो पार्टियों के बच्चों ने जो है क्लब फ्री करवा दिया है उनमें जीत हासिल हो गई है, जिनमें नहीं करवाया गया उनकी हार हुई। तो क्या मतलब है? हमारे लगता है कि रग रग में जो है हमें लालच ही भरा पड़ा है कि जहाँ हमें लालच दिखती है हम उसी को ही जिता के रख देते हैं और उसके बाद कोसते रहते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझदार हो, पढ़े लिखे हो, आगे आप कहते हैं 11वीं क्लास कक्षा तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात होती है
और कोई साधारण बच्चा पहुंच नहीं सकता। आप में कुछ ना कुछ गुण रहा होगा, तभी आपने यहाँ तक जो है सफ़र तय की है। तो इसलिए समझदार बनो, अच्छा बनो, ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ में आई, अच्छा लगा, और जनरल सी बात है, जब आप त्रिपाण सेंटर की मदद करना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। यही प्रावधान आपके मन में होना चाहिए, शेयर करने की भावना। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो जर्नल सी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी जो है अगला वीडियो का नोटिफिकेशन भी प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर 8th से लेकर M तक के बच्चों के लिए बहुत कुछ है। सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, जो रेड सब्सक्राइब दिख रहा है उसको दबाइए, त्रिपाण सेंटर के साथ जुड़ जाइए।